So today we will start with the second law of thermodynamics. Now we have already studied the first law of thermodynamics and talks about the law of conservation of energy. That is, energy in any form it can be mutually interconvertible. All the heat energy can be converted into work, and all the work can be converted into heat, and vice versa. सो अब फर्स्ट लॉ के अंदर लिमिटेशंस थी बहुत सारी. उसमें फर्स्ट लिमिटेशन तो ये है कि जो फर्स्ट लॉ है डज़ नॉट टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी. अब जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं हीट की. अब वी नो दैट हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. अगर कप में आप गर्म या हॉट कॉफ़ी रखते हो तो वो हमेशा ठंडी होगी. ऐसा नहीं होगा कि आप ठंडी कॉफ़ी या मतलब कोल्ड कॉफ़ी रख दो और वो थोड़ी देर बाद आपको होगी हाँ जी मेरी कॉफ़ी जो है गर्म हो गई, ऑटोमेटिकली हीट्स अप. You never heard of such things. So इसी तरह से there are many examples, like here it is given that if we heat a shaft from one end, the heat flow always flows from left to right hand, that is from the hotter side to the colder side. Heat always comes inside the room from the say hot this environment during summers into the room, and it never goes out of the room into the environment. The reverse of this process never happens. You might have observed this, that heat always flows from higher temperature to lower temperature. So this is something which is not, you can say, mentioned anywhere in the first law of thermodynamics. ये कहीं भी मेंशन नहीं किया उसने कि हीट का जो डायरेक्शन इस तरह से होगी. उसमें तो सिंपल उसने फर्स्ट लॉ में जो है हमने देखा है कि उसमें यही डिफाइन किया हुआ है कि जो हीट या वर्क है दे आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल. अगर सारी की सारी हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है. We can convert all of the work into heat, but we cannot convert 100% heat, all the heat into work. Some portion of heat must be, you can say, lost to the surroundings. It must be rejected somewhere in the, you can say, sink, and only then we can get some work output. बट एक्चुअल में फर्स्ट लॉ के थर्मोडायनेमिक्स में ये भी कहीं उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है कि ऐसा कुछ है कि जो हीट है वो लो ग्रेड एनर्जी है और जो वर्क है वो हाई ग्रेड एनर्जी है. ऐसा कुछ नहीं है. उसमें ये क्या है कि हीट जो है 100% कन्वर्ट हो सकती है वर्क के अंदर, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जिसमें 100% जो है हीट को हम कन्वर्ट कर सकें. सो अगेन दिस इज़ अनदर लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नाउ here again there is an example of this work and heat. All work can be converted into heat, but all heat cannot be converted into work. As all मैं तुम्हें पहले ही बता दिया है कि जैसे हीट इंजन है, जैसे हमारा इंटरनल कंबशन इंजन है, उसके अंदर भी यू ऑब्जर्व दैट व्हेन वी बर्न द फ्यूल all the heat energy is not converted into work, because some portion of that heat must be rejected into the surroundings. Some portion of heat that must be, you can say, taken away by the cooling water, and some of that heat is go waste into the surrounding through your exhaust tube. So again do not get the whole 100% work output. This is Q, total heat which we get through the burning of fuel. This is heat which is you can say wasted in due to the friction of various parts. This is the portion of heat which is which you can say go waste through the cooling water. This is the heat which you can say taken away by the oil. This is the portion of heat which is dissipated into the exhaust, through the exhaust into the environment. So all these heats, this Q exhaust, Q friction, Q cooling water, and Q oil, all these heats are of no usage for us. Now let us move on to another example. Now this is an example of you can say thermal power plant. In a power plants, all heat generated from combustion of coal is not converted into work, but the portion of input heat has to be rejected in the condenser. Now I don't know you, because you are just in third semester. Now there is in thermal plants the heat is generated in furnace, then through this heat we raise some steam, then steam is go into the turbines, then turbine converts the this heat into work. But at the end we need to reject some portion of heat in the condenser. Now in thermal plants, all heat generated from the combustion of coal is not converted into work, but a portion of input heat has to be rejected in the condenser. So this is defy the first law of thermodynamics, because as per first law of thermodynamics all the heat should be converted into work, but it is not happening here in thermal plant.
So these are the few, you can say, limitations of first laws. Now this question has been asked many times in the examination कि what are the limitations of first law of thermodynamics, and you should write all these things in your words. Now all the shortcomings, all the, you can say, things which first law has not able to define has been fulfilled with the help of second law of thermodynamics. Like the first law does not tell us anything about the direction of work or heat. So second law of thermodynamics indicates that all heat cannot be converted into work. Again, according to second law of thermodynamics, heat will only be transferred from high temperature to lower temperature, because first law never talked about the direction of flow of heat. So that shortcoming is also removed by the second law of thermodynamics, that heat will only travel from high to low temperature. रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा है, वहाँ पे रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है कूलिंग प्रोड्यूस हो रही है, और बाहर जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उससे काफ़ी ज़्यादा है. लेट अस से आउटसाइड टेम्परेचर इज 32 डिग्री सेल्सियस and you are maintaining temperature inside the refrigerator around -2 or -3 degree Celsius. So how it is happening? It does not throwing out the heat from the inside space to outside ambient temperature by its own, but we need to do some work through the compressor. ठीक है ना. तो वहाँ पे कंप्रेसर काम कर रहा है कंटिन्यूसली. आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इनपुट, वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसी वजह से वो जो सिस्टम चल रहा है. तो वो सेकंड लॉ जो है उसको डिफाइन कर रहा है कि हाँ, अगर आपको ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप करना है जहाँ पे एनर्जी जो है लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ जा रही है, तो यू नीड टू डू सम वर्क. सो अगेन यू कैन कोट द एग्जांपल ऑफ रेफ्रिजरेटर. जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एक जो वो है वो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है. क्वांटिटेटिव मतलब कि उसमें जस्ट उसमें ब्रीफली वेगली हमें एक आइडिया दिया है कि हाँ, एनर्जी जो है it can not neither be created nor destroyed, energy can be converted into one form to another form. but उसमें precisely कई चीज़ों को mention नहीं किया, precisely नहीं किया, तो इसमें तो it becomes a quantitative statement. लेकिन अगर we go into more depth, if we try to this explain things in a more detail, in a more precise manner, then we can say that second law is more appropriate, because it is defining each and everything in a more precise manner. So it becomes a qualitative statement. I am giving you 2 minutes, just go through the slide, read all the statements. If you want to ask anything or if there is any doubt, please ask me right now. सर एक्चुअली आपने फर्नेस वाली वो दिखाई थी ना, फर्नेस वाली स्लाइड दिखाई थी, वो खोलना एक बार. Yeah, there is a slide. इसमें सर इसमें कुछ हीट हमें रिड्यूस करनी पड़ती है वो साइकिल को चलाने के लिए. वो कैसे मेंशन करेंगे सर? मतलब वो क्यों करेंगे सर? रिड्यूस क्यों करेंगे? रिड्यूस नहीं करेंगे. एग्जैक्ट फॉर्म जो है हमें वी रिजेक्ट सम फॉर्म ऑफ हीट, रिजेक्ट करेंगे. वो इसलिए करेंगे क्योंकि मैं बताता हूँ तुम्हें. वो रिजेक्ट इसलिए करेंगे, जस्ट मैं तो अब तुमने क्वेश्चन पूछा था तो थोड़ा आंसर भी होना चाहिए ना उसका. तो बेसिकली हम क्यों करेंगे? बिकॉज हेयर वट वी आर डूइंग इन अ बॉयलर, वी आर रेजिंग अ स्टीम. अब वो जो स्टीम है, उस स्टीम को हम जो है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर स्टीम को बाय यूज़ ऑफ दैट स्टीम वी आर एक्सपेंडिंग द स्टीम इन अ टर्बाइन. और टर्बाइन में क्या हो रहा है? वर्क आउटपुट मिल रही है तुम्हें. यू आर गेटिंग सम वर्क थ्रू द टर्बाइन. नाउ द वंस द स्टीम हैज़ डन इट्स वर्क, once the steam has done its work, now its internal energy has been reduced to a great extent. Now this is all the, you can say, working substance in this thermal plant is the water. The water has been expanded in the form of steam. We have used up its you can say heat energy. Now what we want to do is we want to convert it back into the water. अब हमें इसको दोबारा फिर वाटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसको यूज़ भी करना है दोबारा. तो उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसको कंडेंस करना पड़ता है. दैट इज़ वाई वी नीड टू रिमूव इट्स हीट सो दैट इट अगेन कम बैक टू लिक्विड फॉर्म. So we need to remove the heat of the water in the condenser. Only then it will come back to the water liquid state. Then again we will heat that water and convert into the steam to use this. So in this process we don't have any other option कि heat reject ना करनी पड़े. अब कंडेंसर में क्या हो रहा है? बेसिकली कंडेंसर उसको कंडेंस कर रहा है, उसकी हीट को रिमूव कर रहा है. तो यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कंडेंसर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ, you can say, a place where we are rejecting the heat. It is a sort of sink. Condenser is a, you can say, just acting like a sink, and we need to remove some heat here. Only then we can, you can say, run this cycle. Now next, before we discuss about the heat engine and heat pump,
वी नीड टू नो समथिंग अबाउट द रिजर्वियर्स, एनर्जी रिजर्वियर्स, या जिसको हम कहते हैं कि व्हाट इज़ हीट सिंक एंड व्हाट इज़ हीट सोर्स। मतलब जहाँ से हीट हम ले रहे हैं उसको रन करने के लिए इंजन को। हीट सिंक का मतलब जहाँ पे हम हीट को डंप कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी नीड टू नो द, वी मस्ट नो अबाउट द डेफिनेशन कि क्या, व्हाट इज, इट शुड बी द डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, व्हाट इज़ अ हीट सिंक, व्हाट इज़ अ हीट सोर्स। नाउ हीट सोर्स या हीट सिंक जो होती है, इट इज़ डिफाइंड एज अ लार्ज बॉडी ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी which is capable of absorbing or rejecting an unlimited quantity of heat without suffering appreciable change in its thermodynamic properties। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है हमारे पास हीट सोर्स। अब यहाँ पे हीट सोर्स क्या है, अब आपने सबने यहाँ पे देखा है, मुझे बताओ यहाँ हीट सोर्स क्या है, थोड़ी सा हीट क्या है, नाम बताओ उसका। मोटर है सर। मोटर नहीं है बेटा, हीट सोर्स इज मतलब फर्नेस, जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ पे हम कोल बर्न कर रहे हैं, फर्नेस, ठीक है। इट इज़ अ सर मुझे फर्नेस। लगा सारे सारे में वर्क वाटर कर रहे हैं ना, ये मतलब कि बेसिकली ये तो सोर्स पूरा होगा। साइकिल चल रहा है ना एक, लेकिन हीट प्रोड्यूस कहाँ पे हो रही है, हीट कहाँ, वेयर वी आर गेटिंग हीट फ्रॉम। अब बॉयलर जो चल रहा है, बॉयलर हीट कहाँ से ले रहा है, इट इज़ गेटिंग फ्रॉम द फर्नेस। हीट सोर्स शुड बी लाइक दैट कि इफ़ वी रिमूव सम अमाउंट ऑफ हीट, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये नहीं कि उसमें से आपने हीट निकाली और उसका टेम्परेचर कम हो गया। सो यू कैन से कोरिलेट इट लाइक अ सी, कि सी की एग्जांपल लेते हैं कि सी इज़ अ वेरी वेरी लार्ज बॉडी। अगर उसमें हम हॉट वाटर को डंप करते हैं तब भी उसका टेम्परेचर इट विल रिमेन कांस्टेंट, और अगर इसमें से हम कोल्ड वाटर को डंप करते हैं उसका टेम्परेचर सेम रहेगा कहीं भी। सेकंड, डंप हीट सिंक, यहाँ पे हीट सिंक क्या है, एनीवन, हीट कहाँ पे डंप कर रहे हैं हम, कंडेंसर के अंदर। मैंने सर यहाँ पे कंप्रेस्ड कंडेंसर है, जो वो कंडेंसर, है। हाँ कंडेंसर के अंदर कर रहे हैं। सो हेयर हीट सिंक इज अ कंडेंसर। सो कंडेंसर को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि उसमें से कंटिन्यूसली हम हीट रिमूव कर रहे हैं। तो अगेन इट इज़ फुलफिलिंग अवर डेफिनेशन कि हीट सिंक ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अगर हम हीट को डंप कर रहे हैं या हीट को उसमें ऐड कर रहे हैं अगर सिंक के अंदर, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो कंडेंसर में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि कंडेंसर है तो बहुत बड़ा नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसका डिज़ाइन ऐसा है कि उसमें कंटिन्यूसली वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। और वो वाटर क्या कर रहा है, इट इज़ कंटिन्यूसली रिमूविंग हीट फ्रॉम द कंडेंसर। सो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है हमेशा, क्योंकि वहाँ पे फेस चेंज हो रहा है कंडेंसर में। बेसिकली कंडेंसर में क्या हो रहा है कि जो वेपर्स आ रहे हैं, वेपर्स को कंडेंस करके हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसकी जो हीट कन्वर्ट कंटिन्यूसली हम रिमूव कर रहे हैं बाय यू कैन से सर्कुलेटिंग द वाटर, चिल्ड वाटर या कोल्ड वाटर, इसको कहते हैं कूलिंग वाटर। सो कंडेंसर के अंदर हमने उसको डिज़ाइन इस तरह से किया कि इट विल बिहेव लाइक अ यू कैन से वेरी वेरी लार्ज हीट सिंक। So again it will fulfill our conditions of heat sink, definition of heat sink. So we can say the condenser is a heat sink. Similarly, this furnace is fulfilling our you can say definition of heat source. So we can say it is a heat source. So all this thermal plant is working between the two systems, that is heat source and heat sink. Heat source is a furnace, heat sink is a condenser. So this is your heat engine. This is a heat engine which is working, which नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू हीट इंजन। सर एक्चुअली हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली अगर हम सिंक को सोर्स को सेम कर दें, मतलब ऐसा साइकिल बना ले कि सिंक भी वही बन जाए और सोर्स भी, तो अच्छा आइडियल बनेगा वो। कैसे हीट सोर्स और हीट सिंक को सेम बना दें टेम्परेचर को, है ना। यस सर। तो आप खुद बताओ मतलब मुझे, अगर आप ऐसा बनाए, अगर एक जगह पे आप टेम्परेचर को, लेटर से आपका हीट सोर्स में टेम्परेचर है 2000 डिग्री सेल्सियस और हीट सिंक में भी 2000 डिग्री सेल्सियस, तो हाउ विल हीट फ्लो, वाई हीट फ्लो, इट विल नॉट फ्लो, बिकॉज एज पर डेफिनेशन हीट विल ओनली फ्लो if there is a temperature differential. Now if you are making the temperature same on both sides, then it will cease to flow. So no heat flow means no work output, isn't it? ऐसे ही हो रहा है ना। बेसिकली हमें तो हीट को फ्लो कराने के लिए डिफरेंशियल जो है क्रिएट करना पड़ रहा है, एक तरफ हाई टेम्परेचर एक तरफ लो टेम्परेचर, ताकि हीट फ्लो हो। अगर आप दोनों तरफ सेम हो जाएगा सब कुछ, तो हीट फ्लो नहीं होगी और आपका वर्क आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। ये इट इज़ जस्ट लाइक यू कैन से आपका वाटर टैंक के अंदर पानी है जिसके अंदर हाइट है नहीं पानी। सर, एक्चुअली मैं पता क्या कहना चाहता हाँ था, हाँ, एक्चुअली मैं कहना चाहता था कि ऐसा कोई सिस्टम बन जाए जिसमें जिसमें हम कम से कम मतलब हमारा लॉस कम से कम हो, तो ऐसे में तो सिंक या और सोर्स से एक ही आई जगह कैन अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। एक्चुअली
what you are asking is this all over the world the scientists are trying you can say trying very hard to develop such a system where कि हमारा जो लॉसेस कम हो, ताकि हमारा जो हीट रिजेक्शन है जहाँ हम कर रहे हैं, यू वांट टू से कि जो कंडेंसर में हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं वो कम से कम होनी चाहिए, आप यही बोल रहे हो ना, ताकि हमारा जो है वर्क आउटपुट मैक्सिमम मिले. बट अगेन देर इज़ अ यू कैन से कंस्टेंट. जैसे जैसे हम कंडेंसर और फर्नेस के बीच का टेम्परेचर कम करते जाएंगे, जैसे डिफरेंस कम करते जाएंगे, या मतलब जिसको कहते हैं कि आप उसका लॉस मतलब जो आपका सिंक है, जैसे जैसे हम सिंक को वी ट्राई टू मतलब रिमूव द हीट फ्रॉम द सिंक, वी रिड्यूस द यू कैन से नेट इफेक्ट ऑन द सिंक, तो उससे हमारा वर्क आउटपुट भी इफेक्ट होता है वो. ठीक है. तो बेसिकली रिसर्च इज़ गोइंग ऑन एंड वी विल राइट नाउ. हमें अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐसा फिनोमेना क्यों हो रहा है, मतलब वाई वी नीड टू रिजेक्ट सम हीट, वाई इट इज़ नॉट कन्वर्टिंग, वाई all the work is converted into heat but all the heat cannot be converted into work because but अगर इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है, वी नीड टू गो इनटू द माइक्रो लेवल, यू कैन से एट एटॉमिक लेवल, ओनली देन वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड. तो ये जो है ये सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इंट्रोपी को भी समझना पड़ेगा. इंट्रोपी, इसका आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंट्रोपी है, जो अब हम जो बात कर रहे हैं. लेकिन अभी ये ग्रॉसली हम इसको समझने की कोशिश करें, तो अभी जस्ट वी आर स्टडिंग अबाउट द फिनोमिनास. नाउ लेट अस स्टॉप द डिस्कशन हेयर बिकॉज यू वांट टू आस्क समथिंग अबाउट द असाइनमेंट्स.